Yes, dear students, once again, welcome to all of you in this session. And in this session, as you can see, we are going to discuss some multiple choice questions. And topic is application of mirror formula and magnification. इन दोनों के ऊपर based हम आज questions करेंगे. And in some questions, you will find magnification as well as mirror formula. Both are being used, right? And if we try to recall, जरा थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, इससे पहले सेशन में हमने क्या किया था? Yes. इससे पहले सेशन में हमने किया था मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन and some numericals based on these two topics, right? So today we are going to have multiple choice questions which are important for coming term 1 exam. So let's recall. The first formula here you can see is 1 upon v upon 1 upon u plus 1 upon u equal to 1 upon f. So this is mirror formula where v is it can be negative and positive in distance of image from pole, and u is the distance of object from pole, and it is always negative. U is always negative. Okay. And second formula you can see it is m for magnification. कब होगा ये? जब हम हमें given है position of image and focal length of the mirror given है, we can find magnification. Now next formula देखें हम, दो फार्मूले हैं. m is f upon f minus u, magnification जब हमें focal length दिया मिरर का, और u distance of object from pole दिया है, right? Second हमें ये है, देखिए जो fourth हो गया, total 4. When we have to find out focal length, so this is the shortcut formula. Just put the value of v and u here, v into u upon v plus u, and you can get focal length. Okay. Focal length you can find quickly in multiple choice questions. You will save time and you will be able to get this good marks. Okay. Now third, you can see here v. When we need to find v, जब हमें v find करना है, distance of object from pole is given, focal length is given, we can use this formula. And we need to find u, जब distance of object from pole से find करना है, तो ये formula हो गया. ओके, तो अब आपको रिकॉल कर लिया आपने कि हमने कौन कौन से फार्मूले कर लिए हैं. तो इन्हीं फार्मूलों को हम यूज करेंगे अब आने वाले क्वेश्चंस में. ठीक, तो इसमें आपको हमने दो क्वेश्चंस लिए जो मैच द कॉलम है, एंड रेस्ट 8 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नाउ लेट्स बिगिन, एंड इफ यू विश यू कैन नोट डाउन इन नोटबुक आल्सो साइड बाय साइड. And if you like this session till end, enjoy all the questions. And if you like this session, do press like button. Okay. Now, first question is: a student performed an experiment for the image formation by a concave mirror. तो सबसे पहले हमारे पास important हो गया पे, this is concave mirror. Okay. At different position उसको रखा जाता है of an object. Focal length of the mirror is 10 centimeter. तो focal length of concave mirror it is given 10 centimeter, right? And here serial number देखो 1 2 3 4 questions are there. Position of here f को f लिखा है, तो ये this is cancelled out. It's a tapping mistake. Okay, because I have not copied the question here. Tapping mistake of the object. Position of the image given है हमको. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, at 10 centimeter जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है from the pole, where will be the position of the image? So this means object कहाँ रखा हुआ है? Yes, Kanika is saying sir object is placed at focus. तो इस first case में object is placed at focus. This means f is equal to u. F is equal to u. So जब concave mirror के सामने focus पर object को रखते हैं, so image कहाँ बनता है? This is P, this is F, and this is, ये कितना होगा? C, center of curvature, and this is F. So, okay, this is F. So, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फोकस पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा? Yes, सुदर्शना is saying sir at infinity. Good. तो इसका मतलब हमारा जो A है, इसका एक हमारा आंसर आएगा थर्ड. अब देखिए ऑप्शंस भी हम ले लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है, सेकंड ऑप्शन बी, एंड देन सी, एंड देन डी. दिस 4 ऑप्शंस आर देयर. सेकंड हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल.
20 का मतलब हो गया दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एंड दिस इज मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ दैट. दिस मींस ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट सी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना. तो जब सी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? यस, ट्राई टू रिकॉल. सो इमेज इज फॉर्म एट सी इटसेल्फ, सी पर ही बनता है ना. तो इट इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ दिया है. तो दिस मींस इसका आंसर हमारा ये हो गया. तो यू कैन सी हियर ए के लिए थर्ड एंड बी के लिए फोर्थ. अभी तक तो हमारा ये चल रहा है, ए के लिए थर्ड, बी के लिए फोर्थ. ए एंड डी में सेम ऑप्शन है, तो वी हैव टू गो फॉर सी ऑल्सो. बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर मीन्स सी से पीछे इसको रखेंगे, सी से पीछे यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है. तो जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो कहां बनेगा इमेज? यस, याद करिए. तो व्हेन इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म वेयर? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. एब्सोल्युटली राइट. तो ये हमारा आ गया. ओके, सेकंड. अब ये थर्ड फोर्थ केस है एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल. तो 8 सेंटीमीटर यू इज लेस देन एफ. ओके, 8 is less than 10. So this means object is lying here between focus and pole. Image क्या बनेगा? Yes, एकदम सही आंसर दिया अक्षय ने, behind the mirror. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन गया फर्स्ट. अब देखिए हमारा किस में, ए के लिए फोर्थ, हमारा ए के लिए थर्ड, बी के लिए हमारा फोर्थ, ये हमारा है, सी के लिए सेकंड इसमें है एंड डी के लिए फर्स्ट. तो दिस मींस करेक्ट ऑप्शन इज ए. तो हमारा यह आंसर आ गया ए इज करेक्ट ऑप्शन. एनी प्रॉब्लम हियर? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल आल्सो बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर. तो नाउ सेकंड क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन हाइट. तो एच आई गिवन है, तो हम साथ साथ लिखते रहेंगे, हमें सॉल्व भी करना है, टाइम सेव करना है. तो एच आई इज 5 सेंटीमीटर. At a distance of 20 centimeter is placed from concave mirror. The mirror is concave. So distance u is given minus 20 centimeter. और focal length कितना है? 15. प्लस होगा माइनस होगा focal length? सर concave mirror है तो focal length माइनस होगा and it is 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed? Screen कितनी दूर रखना चाहिए? स्क्रीन किसलिए यूज होता है सर? टू गेट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सही बोला आपने कि सर इसको तो हम स्क्रीन को लगाएंगे टू गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो दिस मींस वी हमको फाइंड करना है. स्क्रीन कहां पर होगा? वी पर होगा. ओके, वी हमको फाइंड करना है. तो देखिए एच आई दे रखा है, एफ दे रखा है, यू दे रखा है एंड और कुछ देखिए इसमें. एन ऑब्जेक्ट of 5 centimeter in height is placed at a distance of 20 centimeter from concave mirror, focal length 15. At what distance from the mirror should a screen be placed to get a sharp image and also find the height of the image? दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो v फाइंड करना है एंड हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है. ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो देखिए कैसे करेंगे. पहले हम फाइंड करते हैं v एंड ट्राई टू रिकॉल द फार्मूला कि v फाइंड करने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया था. यस, v इक्वल टू, यस अभी हमने शुरू में किए थे. तो v इक्वल टू, ट्राई टू रिकॉल, फार्मूला इज, यस आपको याद आ गया, यस v f अपॉन f माइनस v और u माइनस, सॉरी u f एंड हियर u माइनस f और f माइनस u. यस सर, u माइनस f. Yes, it is u minus f and here it is u. तो इसमें वैल्यू रख देंगे. तो v हमारा आ जाएगा, u कितना है देखिए -20 इंटू फोकल लेंथ कितना है -15 अपॉन u माइनस f. तो u इज हाउ मच? -20 माइनस f. f इज अगेन -15. तो इट विल बी, ऊपर कितना आ जाएगा 20 इंटू 15 upon here it will be -20 and here it is 15. So it will be 20 into 15, ये कुछ नहीं है, upon here -5. तो 5 3s are 15 and 20 into 3 60 and ये माइनस साइन है. तो v कितना आएगा आपका? v will be -60 सेंटीमीटर.
तो दिस मीन्स -60 आया, तो विच काइंड ऑफ इमेज विल बी देयर, रियल और वर्चुअल? Yes, Priyanka is saying sir माइनस साइन है तो ऑब्वियसली द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो लेट्स सी -60 हमारे ऑप्शन में कहाँ है, फर्स्ट में है -60, दूसरे में -30 है तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, थर्ड में -60 है। ओके, तो अब देखिए हमारा फर्स्ट तो ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा एंड ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा v -60 आया। अब हमको देखना कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट और दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो नाउ वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यस, HI अपॉन HO इक्वल टू -V अपॉन U। गुड। सो HI हमको फाइंड करना है, HO इज हाउ मच, 5 इक्वल टू -V, तो माइनस ये है और माइनस हमने 60 फिर रख दिया एंड हियर व्हाट डू वी गेट, U इज हाउ मच, U कितना है, -20। गुड, तो -20, 23 जा हाउ मच, 23 जा 60 एंड 5 3 जा 15, तो H हमारा कितना आ जाएगा, -15। तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये माइनस रह गया और 15 सेंटीमीटर। तो 15 हमारा आया और इधर 60 आया, ये दोनों ऑप्शन हमारे ए में है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन है ये। तो हियर आंसर इज ए ऑप्शन। Any problem here? So this is the shortcut method to solve the question. Now next. The image of an object placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on the screen. Mirror नहीं दिया, कौन सा mirror है? So image बन रहा है, image। तो image कौन से mirror में बनेगा, convex या concave? Yes sir, concave में बनेगा। Okay. So this means the given mirror is concave. Concave mirror हमको दिया है और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो यू हमको दे रखा है 30 -30 सेंटीमीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60, तो वी हमारा दे रखा है -60 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2.4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है, ऑब्जेक्ट इज 2.4 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है एंड नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, हमें स्क्रीन पर बन रहा है इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एक आंसर तो हमको मिल गया। ठीक, अब हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ एंड हाइट। तो फोकल लेंथ के लिए क्या फार्मूला करेंगे, यूज यू और वी दिए है ना, तो फोकल लेंथ का फार्मूला आपने किया था F इक्वल टू यू बी अपॉन यू प्लस वी। तो क्विकली स्टार्ट डूइंग इट, जल्दी से इसको करना शुरू करिए, हम तब तक वेट करते हैं आपके क्या आंसर इसका निकालते हैं। हरी अप, F इक्वल टू यू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी, स्टार्ट डूइंग इट, क्विकली डू इट। यस हरी अप, चलिए, और उसके बाद में फाइंड करेंगे हाइट ऑफ इमेज। ये स्टार्टेड, यस गुड। तो चलिए हम भी कर लेते हैं। F इक्वल टू यू इज -60, तो हमने -60 लिख दिया, इंटू V इज -60, U इज -30, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -30 अपॉन U प्लस V, तो दिस इज -60, प्लस की जगह माइनस ही रहेगा, देन इट विल बी माइनस दिस, देन इट विल बी ऊपर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इट विल रिमेन सेम। इट इज इजी इन एग्जाम, नेवर मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स बिकॉज यू विल गेट अ बिग नंबर एंड देन इट विल बी डिफिकल्ट टू डिवाइड इट। So here it will be how much, 90, so 30 3s are 90, 3 2s are 6, तो फोकल लेंथ कितना आ गया बेटा, इट इज माइनस का साइन है, तो माइनस कितना आ गया, यस 3 2s are 6, 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऑप्शंस, देखिए फर्स्ट में 20 है, -20 है, माइनस आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड भी है, सेकंड में -20 है, ये भी हो सकता है, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ में नहीं होगा, ओके, बिकॉज इनमें +20 आ रहा है ना। तो अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें फाइंड करना हाइट ऑफ इमेज एंड दिस विल बी HI अपॉन HO इक्वल टू -V अपॉन U। HI हमको फाइंड करना है, HO हमको दिया है कितना, हाउ मच, 2.4 and here it is
minus v, so this is again minus 60 upon u. U is how much? minus 30. तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6 20 60 आएगा. देन एच आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.4. तो इट विल बी हाउ मच? 2 इंटू 2.4, यहाँ माइनस का साइन है, तो इट विल बी 4.8. अब देखिए 4.8 माइनस आ रहा है, तो माइनस मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा. तो रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज नॉट द आंसर. तो हियर करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया ए. ओके, एनी प्रॉब्लम? तो शॉर्टकट मेथड्स हैं ये, क्विकली आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, आई एम श्योर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल. तो व्हाट इज गिवन? u. क्विकली राइट डाउन इन योर नोटबुक. तो u इज गिवन, हमको कितना दिया है? u. तो u इज गिवन माइनस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर दिया है, तो फोकल लेंथ तो माइनस में होगी. प्रोड्यूसेस ए रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज, हाउ मच? 4 टाइम. तो m हमको दे रखा है मैग्निफिकेशन 4. रियल इमेज है तो माइनस हो जाएगा. फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना है बेटा r इज क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है. u दे रखा है हमको, m हमको दे रखा है, और f निकालेगा पहले, है ना. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज ट्वाइस f. तो दिस मींस वी नीड टू फाइंड f फर्स्ट. फार्मूला क्या था जरा याद करें. सबसे पहले हमने शुरुआत में करे थे फार्मूले. ठीक, f इक्वल टू, जब हमको u दिया है और m दिया है, तो फार्मूला क्या था? m इक्वल टू, यस याद करेंगे, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. ट्राई टू रिकॉल. यस, ये फार्मूला था. यस, गुड. तो जल्दी से वैल्यू रखिए बेटा, फाइंड करिए. इसमें m की जगह कितना रखेंगे हम? -4. f हमको फाइंड करना है. देन हियर f माइनस u. u कितना है? 12. तो यहाँ -12 रख दिया हमने. करिए जल्दी से सॉल्व इसको. यस, हरी अप. इट विल बी हियर f and it is minus, and in the bracket f plus 4. Then it will be minus 4f, and it is minus 48, and here f. तो इसको सोल्व करेंगे तो what value do you get? Yes, इधर कितना आएगा? देखिए ये माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 5f, and here it is minus 4.48, not 4.8. Then f will be 48 upon 5 is equal to 5 9s and 5 6. f आ गया इतना 9.6. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ f. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 2 into 9.6 is equal to 2, and here it is 19.2 सेंटीमीटर. ओके, माइनस में. तो देखिए ऑप्शंस, 19.2 फर्स्ट में है, माइनस में. दूसरे में 9.6 है, नहीं होगा. इसमें प्लस है 19.2, ये भी नहीं होगा. एंड देन 20 नोट. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया दिस. तो दिस इज नॉट द आंसर. ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा ये आ गया ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. तो नाउ फर्स्ट, a concave mirror produces a real image of magnification 1/2 when an object is placed at a distance of 60 centimeter. So magnification जो है रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन कितना है? 1/2. तो m is equal to 1/2. ओके, माइनस में है ये. When object is placed at a distance of 60, तो u है -60. ये मैग्निफिकेशन कब है? जब 60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. मैग्निफिकेशन इज 1/2 रियल इमेज के लिए. दिस इज फॉर रियल इमेज. सेकेंड पार्ट इसमें है टू गेट द वर्चुअल इमेज. ये रियल इमेज है हमारा पहले केस में, दूसरे में वर्चुअल इमेज हमको लेना है. तो दिस इज फॉर रियल. अगर हमें वर्चुअल इमेज बनाना है, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड. तो हियर सेकेंड केस में m इज +2 एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड u. u कहां होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यस, स्टार्ट थिंकिंग. कैसे करेंगे, क्या क्या निकालना पड़ेगा इसमें? तो u दिया है, तो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड?
यस वी फाइंड करना पड़ेगा, वी भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन कोई रिलेशन है जिसमें यू एंड वी यूज होते हो? मैग्निफिकेशन दिया है? नो। क्या यूज होता है साथ में? एफ चाहिए हमको, तो एफ भी फाइंड करना पड़ेगा और यू भी, वी भी यस वी भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फार्मूला, विच फार्मूला विल बी यूज। ओके, तो फार्मूले यूज करना शुरू करिए। तो सबसे पहले हम देखिए रियल इमेज के लिए यूज करते हैं फार्मूला m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन इज हाउ मच? -1/2, तो यहाँ -1/2 रखेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो -1/2 माइनस वी हमारा हो गया, u कितना है? -60, तो हमने -60 बेटा यहाँ रख दिया, एंड हियर माइनस माइनस कैंसिल, v विल बी हाउ मच? कितना होगा v बेटा? 2 3 जा 6, तो ये आएगा v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम है? तो दिस इज v इज -30 सेंटीमीटर, मीन्स रियल इमेज जो है जिसका मैग्निफिकेशन 1/2 है, इट विल फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। एनी प्रॉब्लम? नो। अभी हमें फाइंड क्या करना है? f। अब हम f फाइंड करेंगे। f फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? अब देखिए हमारे पास u भी आ गया और v भी आ गया, तो फार्मूला याद कर लीजिए। यस, सुहानी इज सेइंग सर u इंटू वी अपॉन u प्लस v, ये फार्मूला लगाएंगे। तो f इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा? यस, करिए सॉल्व नोटबुक में, हम यहाँ कर रहे हैं और आप नोटबुक में करिए। यस, गुड। -60 and here it will be -30. What do we get here? -60 into this will be plus 30 upon 90. तो this is 3 2 जा 6, तो f हमारा आ जाएगा माइनस में 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 आएगा, कितना आएगा? 3 2 जा 6, 20 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज 20 सेंटीमीटर। 3 3 जा 90 एंड 3 जो बचा 3 2 जा 6, तो आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए f हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर, हमारा f जो आ गया कॉनकेव मिरर है तो 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास f आ गया, v भी दिया है और इसमें हमारा मैग्निफिकेशन दिया है, तो हमें u फाइंड करना है। तो नाउ वी कैन डू m इक्वल टू, क्या फार्मूला है? यस, याद करिए, m इक्वल टू, हरी अप, f अपॉन f माइनस u। ओके, मैग्निफिकेशन कितना है? 2, f इज हाउ मच? -20 अपॉन -20 एंड देन -4। ओके, -4, u है ना, तो u कितना था हमारा? u इज, हमें फाइंड करना है, u हमको फाइंड करना है ना। सो हियर वी नीड टू फाइंड u, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या है इसमें। -10, -20, +10 एंड देन 20.5। सो इसमें देखिए जल्दी से, एंड इट विल बी हाउ मच? f इज -20, हमने वैल्यू रख दिया, u हमको फाइंड करना है। So 2 into -20 minus u is equal to -20. अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा, this is 20. So and पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो it will be -10. So -20 minus u is equal to -10 और u will be -10 plus 20 और u will be how much? अब इसमें कितना आएगा देखिए, सॉल्व करेंगे तो ये सरी, अब कौन बताएगा? सौम्या इज गिविंग आंसर, सर इट विल बी -10 सेंटीमीटर। तो -10 देखिए किस में आ रहा है हमारा? फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 10 इसमें है लेकिन इट इज प्लस, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो नाउ करेक्ट ऑप्शन इज हियर ए। चले नेक्स्ट। सो दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन। An object is placed in front of a convex mirror of focal length. Now convex mirror is there. Focal length convex mirror का क्या होगा? Yes, good. +60 सेंटीमीटर।
if image formed is half of its height, तो image form is half of its size. Okay, तो ये hi is half of its height, ये हमको दिया है. तो दिस मीन्स hi अपॉन ho इक्वल टू 1/2 हमको दिया गया है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है ना. तो देखिए ऑप्शन हमको दिए हैं 30, 20, 10.2, 20.5. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो फार्मूला क्या लगेगा देखिए, u निकालना है. ओके, मैग्निफिकेशन दिया है. सो दिस इज m हमको गिवन है. u निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज v निकालना है. तो m इक्वल टू फार्मूला, यस याद करिए, ट्राई टू रिकॉल विच फार्मूला विल बी यूज्ड. वी नीड टू फाइंड v. हरी अप, फार्मूला हमारा क्या होगा? यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, f माइनस वी अपॉन f. तो देखें इसमें वैल्यू रखिए. दिस इज 1/2. f इज हाउ मच? 60 माइनस v अपॉन 60. ओके, नाउ सॉल्व करेंगे इसको. इट इज 2, 3, 30 and it will be 30 is equal to 60 minus v. Now 30 minus 60 is equal to minus v, or minus v will be minus 30, minus minus cancel and it will be v is equal to how much? 30 centimeter. तो देखिए किसमें आंसर है? यस, फर्स्ट इज, है ना. तो ये हमारा 30 इसमें आ रहा है. तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया ए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. इसमें तो इसमें देखो मैच करना है आपको, और ऑप्शंस हमारे देखिए ये आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ. 4 ऑप्शंस आर देयर. व्हाइट लाइट जो है देखिए क्या है, व्हाइट लाइट इसमें से देखिए क्या है इसमें से, फॉर द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी, नो इमेज बन रहा है. तो फॉर द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी ये भी नहीं होगा. स्पेक्ट्रम बनाती है या डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो व्हाइट लाइट जो है इट फॉर्म्स स्पेक्ट्रम ऑफ, यस, फॉर हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. तो इसका ऑप्शन हमारा ए के लिए ये ऑप्शन है. दिस इज फॉर ए, ये हमारा ए के लिए ऑप्शन है. ए में थर्ड देखिए किसमें है. ए में थर्ड हमारा इसमें भी है और इसमें भी है. तो इसका इन दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एनीवन, कौन बताएगा? यस, आदित्य इज सेइंग अपर्चर इज डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये हमारा हो गया बी के लिए फोर्थ. तो ये हमारा आ गया बी. तो बी के लिए फोर्थ देखिए किसमें है, फर्स्ट में भी है और इसमें भी, तीनों में, चारों में है. ओके, लेकिन अभी फर्स्ट ए और बी में से कोई होगा, है ना. चलो सी के लिए देखें. कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑलवेज फॉर्म इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस. ये है फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल फॉर्म्स इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो देखिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें, फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑलवेज फॉर्म इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, उसके बीच में बनता है इमेज, है ना. यस, ये किस केस में होता है? कॉन्वेक्स मिरर में. और कॉनकेव क्या करता है? इसके लिए ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल अगर हम रखेंगे तो इमेज जो होगा कहीं भी बन सकता है. इसमें थोड़ा सा इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इमेज कहीं भी बनेगा, है ना. ठीक, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑप्शन जाता है फर्स्ट, बाकी बचा इसके लिए. तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है ए. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आंसर इज हियर ए. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? नो. चलिए, नाउ नेक्स्ट, a convex mirror of focal length f, this is again very good question, forms an image which is 1 upon n times the height of the object. The distance of object from the mirror we have to find out. mirror कौन सा है? convex. तो focal length इसका क्या होगा? प्लस इमेज बना रहा है which is 1 upon n times the height of object. तो this means hi upon
HO is equal to 1 upon N, or we can say that M is equal to 1 upon N. What do we find? Distance of the object from the mirror. U find करना है ना बेटा? U we need to find. फार्मूला याद करिए, F, U and M के बीच में. M is equal to क्या फार्मूला था? Yes, try to recall. M is equal to F upon, बिल्कुल सही, F upon F minus U. तो देखिए इसमें ऑप्शंस हमारे कौन कौन से हैं? N minus 1F, N minus 1 upon NF, N plus 1 upon N, एंड या इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं. ओके, तो M इज 1 अपॉन N, ये हमने रख दिया. F की जगह F रहने दिया हमने, एंड हियर दिस इज F माइनस U. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NF इज इक्वल टू F माइनस U, एंड देन हमारा जो होगा देखिए NF माइनस F इज इक्वल टू माइनस U, और वी कैन से दैट U इज इक्वल टू F कॉमन आ गया, N माइनस 1. ओके, सो हमारा U माइनस में होता है, तो हमारा जो F N माइनस 1 ये आंसर है, और ये किस में है? फर्स्ट में. ठीक, और वी कैन से दैट U इज इक्वल टू माइनस F N माइनस 1. तो ऑप्शन हमारा F N माइनस 1 इसमें है, तो दिस करेक्ट आंसर इज A. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इट्स गुड क्वेश्चन. द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज F. अब मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज X. अब थोड़ा सा इसमें डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा ना. तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज फोकस, दिस इज फोकस, एंड ये हमारा फोकल लेंथ है यहां तक, है ना. दिस इज F, दिस इज स्मॉल f, यहां तक स्मॉल f है. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज X. तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहां रखा हुआ है कहीं, दिस इज प्लेस्ड हियर, एंड हमको क्या दिया है? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज x1. ओके, x दिया, x नॉट x1, x. रेशियो फाइंड करना, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना. तो दिस मींस HI अपॉन HO वी नीड टू फाइंड. ऑप्शन देखिए इसमें कौन कौन से? F प्लस एक्स अपॉन F, F अपॉन X, F स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर, F माइनस एक्स अपॉन F. देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो हमारा U कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर F इज दिस, U कितना होगा? तो U विल बी F प्लस x1. वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला. इट विल बी F प्लस x1. ये हमारा U आ गया. चले आगे. फार्मूला क्या लगेगा? मैग्निफिकेशन हमको निकालना है, M निकालना है. सो हियर M इज इक्वल टू फार्मूला वही F अपॉन F माइनस U. ये फार्मूला है ना अभी. गुड. सो हियर M वी नीड टू फाइंड. F इज माइनस F अपॉन माइनस F, और U क्या है? माइनस में है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, अंदर रखेंगे F प्लस X. ठीक, तो ये क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा, है ना. ये देखिए यहाँ पर ये था ना, और यहाँ ये बीच में माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस F अपॉन माइनस F प्लस F माइनस X. तो ये F और ये F कैंसिल हो गए, तो व्हाट डू वी गेट हियर? माइनस F अपॉन माइनस X, और माइनस माइनस कैंसिल, व्हाट डू वी गेट? F अपॉन X. तो हमारा मैग्निफिकेशन आ गया F अपॉन X. ये किसमें देखिए? इसमें है नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो आंसर हमारा यहाँ पर आ गया B. Any problem here? So this is another good question for competitive exams and for exam also. So you have done it. Good. Now last question. A concave mirror experiment. Experiment concave mirror का ये भी हम आपको कराएंगे, पूरा experiment आपको कराएंगे और देखेंगे how to find the focal length. ये भी एक सेशन में आपको पूरा दिखाया जाएगा. An object is placed at a distance x1. तो this is another good question. इसके लिए भी डायग्राम जरूरी है. तो देखिए हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. Okay, this is concave mirror, this is pole, and this is F,
ये हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस x1 फ्रॉम द फोकस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, ये हमारा x1 है, यहां तक का डिस्टेंस x1 है एंड दिस इज फोकस, फोकल लेंथ। एंड इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस x2, इमेज बन रहा है तो इमेज ऊपर आएगा नीचे आएगा, कहां जाएगा इमेज, कॉनकेव मिरर है तो इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो नीचे होगा। तो इमेज हमारा यहां बन रहा है, सपोज ओके दिस इज इमेज, ये हमारा इमेज हो गया एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज का डिस्टेंस है ये उन्होंने बोला कि फोकस है, दिस इज x2, तो v कितना होगा यहाँ पे बेटा, तो v विल बी फोकल लेंथ, यस प्लस, गुड, इट विल बी f प्लस x2। u कितना होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, u होगा f प्लस x1, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आ गया हमारे। अब हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और हमने फॉर्मूला किया था पहले कि फोकल लेंथ शुरू में f इक्वल टू, बताएंगे कौन बताएगा, यस अरिजीत इज गिविंग आंसर, ओके अरिजीत व्हाट इज द आंसर बेटा, यहाँ पे फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला बताओ। अरिजीत इज सेइंग सर u इनटू v, वेरी गुड, एंड u प्लस v, वेरी गुड। तो ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला हो गया है ना, तो इसको हम यूज करते हैं। देखिए इसमें फोकल लेंथ भी माइनस में, u भी माइनस में, v भी माइनस में, तो सब कुछ माइनस में है ना, तो इसलिए हम माइनस को साइन को नहीं लेंगे बिकॉज कैंसिल हो जाते हैं, तो हम सीधा फाइंड करते हैं f इक्वल टू u कितना है बेटा, दिस इज f प्लस x1 एंड ये होगा f प्लस x2 अपॉन, दोनों को प्लस हो रहा है, f प्लस x1 प्लस f अपॉन x2, ओके। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो हमारा f इक्वल टू, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर इट विल बी f स्क्वायर प्लस f x2 प्लस f x1 प्लस x1 x2, अपॉन क्या आएगा, अपॉन में आएगा ये रहेगा ना, f प्लस f कितना हो जाएगा, 2f प्लस x1 प्लस x2, ओके कोई प्रॉब्लम, ओके नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, तो इट विल बी 2f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2, वेरी गुड। इधर क्या रहेगा बेटा, तो इधर रहेगा सर f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f x2 प्लस x1 x2, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या होगा, f x1 इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, कैंसिल, ये इधर कैंसिल, और ये 2f स्क्वायर है और ये f स्क्वायर है, तो इधर आएगा ना, गुड, ये हमारा 2f स्क्वायर आ गया माइनस f स्क्वायर आ गया, कितना इधर बचा, x1 x2, ठीक है। अब देखिए 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर क्या आ गया आपका बेटा, f स्क्वायर इक्वल टू x1 x2, और हमने सॉल्व किया तो f क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2, ठीक। अब ऑप्शन देखें, x1 x2 तो ये तो स्क्वायर रूट है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनटू में है, ये है, देखिए। अब इसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं है, सेकंड भी नहीं है, तो ये है हमारा स्क्वायर रूट x1 x2, दिस इज आल्सो नॉट देयर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया C is the correct option. So this way today we have done 10 questions, 10 multiple choice questions which are very very important, and I'm sure that all of you must have enjoyed, and do practice at home and get knowledge as well as marks, okay. And then now see you now in next session with another set of questions. So till then, thank you very much.